Hello everyone, welcome back to the channel. Today we came for a casual ride and we have a Harley Davidson with us. So मैं सोचा why not address the situation that is going on with Harley. So थोड़े दिनों पहले Harley owners ने protest भी किया था because Harley was leaving India and they were like who will take care of their bikes now, कौन service करेगा, कौन warranty provide करेगा. But we have a good news now because Harley is back अगेन इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ हीरो. जनवरी 2021 से सारी ही चीज़ें वापस चालू हो रही हैं, सेल्स, सर्विस, वारंटीज, राइड, सब कुछ. सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज यूजुअली क्या होता है जब कंपनीज जाती हैं इंडिया से तो वापस नहीं आती हैं. But this time Harley is good कि वो वापस आ रही है. So the Harley that we have today is the Mighty Fat Boy, my favorite Harley if you ask me. अभी इसका walk around और ride भी करेंगे. But before that let's talk about what happens if a company leaves India. अब exotic bikes के केस में उतनी problem नहीं है, problem तो है, but still you can order parts from outside. दिक्कत तो तब भी होगी, but still you can manage it. But in case of cars like Chevrolet बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है because लाइक कार्स के पार्ट्स बड़े होते हैं, उनको मंगाना दिक्कत होती है. ऑल्सो वॉट हैपन्स इफ द एग्जिस्टिंग कंपनी दैट इज इन इंडिया बट इज नॉट ऑफरिंग गुड सर्विस. सो वी हैव अ सोल्यूशन टू दिस. Go Mechanics. Go Mechanics is India's leading multi-brand car service network. They offer all kinds of car-related services from periodic repairs to denting and painting to car insurance repairs to AC services, tire services, detailing, you name it, they have it. Also by using their services you can save up to 40%, so that is also amazing, and they use 100% OEM parts and they also offer 1 month or 1000 kilometers unconditional warranty. So जब आप वहाँ से सर्विस कराएंगे you have this warranty. अगर कुछ भी दिक्कत होती है they'll solve it. Also they will provide free pickup and drop. So आपको दे के आने की ज़रूरत नहीं है कार को. They will come and pick it up. They'll drop it after the service. Book your car service. There's a link in description. You just need to follow 3 simple steps. First, choose your car. Second, choose what services you need. And the last step is to select a suitable time slot. That's it. Also for this winter season, we can get cozy inside a blankets. But cars के लिए थोड़ा सा tough time रहता है. But Go Mechanics is offering an anti-freeze package, a tailor-made package for your car in which you can avail many services like windshield replacement, brake pad replacement, you can get the tire maintenance. So in the winters also, your car will have a good time. अब एक काम करते हैं, let's start with the walk around. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. So the Harley that we have today is the Fat Boy. It's my favorite Harley if you know me. पहले मेरे को ब्रेकआउट भी बहुत ज़्यादा पसंद थी बट फिर वो इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गई. सो दिस बिकेम माई फेवरेट. एंड ऑल्सो जब से इसमें वाइट टायर्स दिए गए हैं आगे और पीछे, इट लुक्स एब्सोल्युटली ऑसम. सामने इसमें आपको 160 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है विच इज़ वाइडर देन माई ड्यूक्स रियर टायर. उसमें आपको 150 सेक्शन का रियर टायर मिलता है, यहाँ पे सामने 160 सेक्शन का है. So that is absolutely amazing. आपको dual channel ABS मिल जाता है. Also the wheels on this thing are very interesting. Cast डिज़ाइन दिया गया है जो कि शायद और किसी बाइक में नहीं आता है. So वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. सामने आपको शोवा का सस्पेंशन मिल जाता है which is so massive. Just look at it. It looks very beefy, very muscular. आपको full LED headlight मिल जाती है which is the modern technology that has been incorporated in this model. Coming to the engine. So जब मेरे दोस्त ने वाली बाइक ली थी तब से 107 आता था, अब 114 भी आता है. 114 इज़ अराउंड 122 cc मोर एंड इट प्रोड्यूसेस 10 न्यूटन मीटर्स मोर. सो वैसे तो हार्ले अपने पावर फिगर्स रिवील नहीं करता है बट दिस इंजन प्रोड्यूसेस 145 न्यूटन मीटर टॉर्क. 114 प्रोड्यूस करता है 155 न्यूटन मीटर टॉर्क. हॉर्स पावर का अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो ये इंजन प्रोड्यूस करता होगा 60-70 हॉर्स पावर, नॉट मोर, बिकॉज दीज इंजन्स आर ऑल अबाउट टॉर्क, सिर्फ टॉर्क. ओके, इसमें हॉर्स पावर उतनी ज़्यादा नहीं रहती है. दिस इज योर रियर ब्रेक लीवर, दिस इज योर फुट पैग, दिस इज द एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दीज मार्क्स. ये मेरे जूतों के मार्क्स हैं बिकॉज जैसे ही ये बाइक डिलीवर हुई थी हम लोग एक राइड लेने गए, मुझे पता नहीं था ये 1746 सीसी का इंजन कितनी हीट प्रोड्यूस करता है. मेरे जूते इस पर लग के जल गए.
ये उसी का निशान है, अभी तक नहीं निकला है, 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सो दैट इज़ हाउ मच हीट दिस बाइक प्रोड्यूसर। अब यहाँ से आपको देख के लगेगा कि इसमें रियर सस्पेंशन नहीं है, बट रियर सस्पेंशन वहाँ अंदर की तरफ है, विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड वेरी नाइसली। यहाँ से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। कमिंग टू द हैंडल बार, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी अ लॉट ऑफ क्रोम हैज़ बीन यूज्ड ऑन दिस मोटरसाइकिल, बट इट हैज़ बीन यूज्ड रियली नाइसली। बहुत सटल तरीके से यूज़ किया गया है, कहीं पे भी आपको एक्सेसिव नहीं लगेगा। दिस इज़ द फेक कैप और ये असली वाली कैप है, ओके, फॉर द फ्यूल। सो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट है, बाकी फ्यूल यहाँ से डलता है। द हैंडल बार इज़ एब्सोल्युटली मैसिव। दिस साइड वी हैव द टॉगल फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लाइट कंट्रोल्स, टर्न सिग्नल फॉर द लेफ्ट, टर्न सिग्नल फॉर द राइट। तो दोनों तरफ आपको अलग अलग बटन्स दी गई हैं। दिस इज़ द स्टार्टर, दिस इज़ द हैजर्ड लाइट स्विच, दिस इज़ द किल स्विच, and the levers are absolutely massive on this thing. These are your mirrors. Coming to the instrument cluster, so this is your speedometer. Here we have a display जिसको आप यहाँ से toggle कर सकते हैं। So इसमें आपको RPM, odometer, time ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। But yeah, थोड़े से और features ऐड किए जा सकते थे, but considering it's a Harley, it's all about that casualness, तो वो सब चीज़ें नहीं भी हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। Coming to the key, so इसकी की भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये बाइक है कीलेस। इसमें आपको कहीं की नहीं लगाना पड़ता है, जस्ट नीड टू कीप दिस फॉब विथ यू और फिर आप बाइक स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल सी की है। राइडर सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी बिग, लो है तो आप आराम से अपने पैर ज़मीन पे लगा सकते हैं। दैट इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इस गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है। मैं अभी आपको वेट भी बताता हूँ, बट दिस इज़ द पिलियन सीट विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट ऑफ मच यूज़, बिकॉज जिस तरीके से ये गाड़ी पेस बिल्ड करती है, जो इसका टॉक है, पिलियन विल फॉल ऑफ फॉर श्योर। मैं बैठ चुका हूँ, मुझे पता है, इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। आपको 240 सेक्शन का रियर टायर मिलता है, विच इज़ एब्सोल्युटली मैसिव। इट्स मैसिव मैन। दिस इज़ द रियर डिस्क विच इज़ ऑल्सो रियली बिग, डुअल बैरल एग्जॉस्ट, एंड दीज आर योर इंडिकेटर्स। सो ऑल इन ऑल दिस बाइक इज़ अ मसल बाइक, वेरी गुड लुकिंग, इट्स अ क्रूज़र। उस टाइम जब मेरे दोस्त ने ली थी तो अराउंड 20 लाख रुपीज़ की थी, बाकी अब नहीं पता कि कितने की पड़ेगी, बिकॉज जनवरी में जब वापस आएगा हार्ले, सो विल सी प्राइसेस में कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। बाकी यहाँ पे भी आपको हार्ले डेविडसन यूएसए का बैज मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं एंड देन विल राइड इट। सो बिफोर वी स्टार्ट राइडिंग, मैं आपको सबसे पहले इस बाइक का वेट बता देता हूँ। सो इट्स एट 317 kgs विदाउट एनी एसेसरीज। विद ऑल द एसेसरीज ये बाइक आराम से 320 kgs की होगी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद इट, यू कैन नॉट लेट इट गो वन साइड और द अदर, बिकॉज फिर कंट्रोल नहीं होती है। अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। Now let's go. You heard that mechanical noise? This thing is a torque monster, man. It's so much torquey. Like in whatever gear you are and you give it some throttle, ये इतना torque produce करता है that your mind goes numb. जब मैंने इसको पहली बार चलाया था, just to hold on to the bike, मेरे को डर लग रहा था। मेरे को लग रहा था मेरे हाथ से हैंडल सब छूट जाएगा। So जैसे ही मैं throttle देता था, I was like, oh, so the torque is massive on this thing and you need to be very careful with this motorcycle, because होता क्या है, बहुत सी बाइक्स पावरफुल होती हैं बट वो लाइट भी होती हैं, बट ये बाइक पावरफुल के साथ हैवी भी है। सो आपको दो चीज़ें मैनेज करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पावर मैनेज करना है। सो यू नीड टू प्लान एवरीथिंग, कहाँ टर्न करना है, कैसे मुड़ना है, वो सब आपको प्लान करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में। सो इट्स ऑल अबाउट टॉक 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 टॉक। आप बस इसका टॉक फील करिए, आपको मज़ा आएगा। एंड ऑल्सो इट्स वेरी रिफाइंड, कभी भी आपको मतलब हार्शनेस वाली फीलिंग नहीं आती है। एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है, बट एक चीज़ है मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, व्हाई माय फ्रेंड डिड नॉट गो विद एन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट टिल नाउ। एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गिव इट सम थ्रॉटल। Did you see the needle? Did you see it? In just such a small stretch, we touched 120. मतलब मैंने देखा शायद 120 टोटली टच ना हुआ हो, but we went somewhere around that. So that is how powerful this motorcycle is. अब बात करते हैं इसके क्लच की. So it's a little hard, मतलब ये एकदम लाइट क्लच नहीं है,
सो दैट इज अ थिंग, बट द लीवर इज रियली बिग, तो आप आराम से प्रेशर लगा सकते हैं। गियर बॉक्स हैज दैट मैकेनिकल नॉइज, ओके, दैट हार्ले नॉइज, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड गियर शिफ्ट्स आर प्रीटी स्मूथ, एक बार में गियर लगते हैं, जैसे प्रॉपर क्लिक तो क्या एकदम वो मतलब थर्ड की आवाज है। तो गियर बॉक्स इज रियली गुड। एंड वन मोर थिंग, व्हाइल सिटिंग ऑन दिस बाइक, इनिशियली बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं कि पैर आपको थोड़े से दूर रखना है, पास मत रखना, जूते वूते सब जल जाएंगे। मेरे 3-4 जूते जल चुके हैं इस बाइक पे, सो आई एम वेरी केयरफुल नाउ। तो इंजन से ना क्या होता है, यूजुअली लोग एकदम चिपका के पैर रखते हैं, वो मत रखना, नॉट अ गुड आइडिया। Talking about the sitting position, really comfortable man. The handlebar is so wide. Like इस बाइक को चलाने के बाद जब मैं अपनी KTM Duke चलाता हूँ, मेरे को लगता है उस पे स्कूटी का किसने हैंडल लगा दिया है। So that is the case because the handlebar here is so big. You have this very comfortable cruiser style position. Foot pegs आगे की तरफ है, सीट बहुत comfortable, कुशनी सोफा टाइप की सीट है। So that is pretty amazing. टॉकिंग अबाउट द ब्रेक, सो आपको डुअल चैनल ABS मिलता है इस बाइक पे, बाकी बहुत ज्यादा सेफ्टी नेट नहीं है इस मोटरसाइकिल में, बेसिक स्टफ है। बात करते हैं इसके रियर ब्रेक की। सो यू हर्ड दैट नॉइज व्हेनेवर यू अप्लाई द ब्रेक्स ऑन दिस मोटरसाइकिल, इट्स लाइक यू आर स्टॉपिंग अ ट्रेन, एकदम वो स्टीम रोलर वाली वाइब आती है। एंड ऑल्सो इफ आई प्रेस द क्लच, आप सिर्फ टायर्स की आवाज सुनो, टायर से ऐसी आवाज आती है एज इफ कोई रेलगाड़ी जा रही है, बिकॉज द टायर्स आर सो बिग एंड उससे जो पूरा जो रोलिंग का साउंड है ना, उससे बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा आवाज आती है। सो दैट इज द थिंग। रियर ब्रेक्स आर प्रीटी गुड। सामने वाले ब्रेक की बात की जाए, रियली गुड अगेन। इट्स नॉट लाइक स्पोर्ट्स बाइक जहां पे आपको बहुत अग्रेसिव बाइट मिलती है या फिर लगाते साथ ही एकदम आप रुकने लगते हो, नहीं, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव एंड इट्स ऑफ क्रूजर स्टाइल, सो इट्स कंफर्टेबल। आपको ब्रेक लगाने में बहुत ज्यादा डर नहीं लगता है इस बाइक पे। ब्रेक्स आर प्रीटी गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। सो आई एम सरप्राइज्ड टू से दिस, considering the weight and considering everything, this bike stays really planted at whatever speeds you take it at, and also ये एक अच्छी कंफर्टेबल राइड भी देती है मोटरसाइकिल, कंसिडरिंग आवर इंडियन रोड कंडीशंस। मतलब आपको कभी भी ना ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पीठ टूटे आएगी या फिर आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हो, नहीं, बम्प पॉटहोल्स ये सब एब्जॉर्ब करता है सस्पेंशन, सो दैट इज रियली गुड। अब बात करते हैं व्हाट शुड वी टॉक अबाउट नेक्स्ट। लाइक समटाइम्स क्या, बहुत कम बाइक्स के साथ मेरे साथ ऐसा होता है कि आगे क्या बोलना है मैं भूल जाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। लेट्स गिव इट सम थॉट। Also one more thing is there, you need to be very attentive with this motorcycle while going over wet patches, because इस गाड़ी में इतना टॉर्क है एंड वेट में इसके टायर्स की ग्रिप अच्छी नहीं है, सो इट गोज ऑल ओवर, मतलब वो एकदम ऐसे whiplash टाइप का करती है। सो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव दैट टाइम, एकदम थ्रॉटल पे प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। सो आई थिंक वी शुड नॉट इवन टॉक अबाउट दैट। 8-9 शायद हम लोग ने आज तक निकाला भी नहीं है, सो 8-9 का माइलेज देती होगी या फिर नहीं भी देती है तो पता नहीं, बिकॉज दिस इज अ फन बाइक। एंड इफ वी टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट, सो मेरा एक सिंपल सा आंसर रहता है, आफ्टर 3-4 लाख रुपीज ब्रैकेट यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर माइंड। आपका दिमाग बहुत पहले छूट चुका है, ऑल यू आर गोइंग विद नाउ इज योर हार्ट। सो आपको जो भी बाइक पसंद आए, स्पोर्ट्स बाइक पसंद आए, स्पोर्ट्स लो, ये पसंद आए ये लो, बिकॉज देखो 5-6 लाख के बाद ना सारी बाइक्स अच्छी हैं, बट सब बाइक्स का एक अलग कैरेक्टर है, अलग करिश्मा है, एंड सब में आपको मतलब एज सच ब्रेकिंग, इंजन, ये सब तो अच्छा मिलता ही है। सो गो विथ वॉट एवर यू लाइक, बिकॉज अब तो भाई दिल की बात है, दिमाग तो बहुत पहले छूट चुका है। हैंडलिंग की बात की जाए इस बाइक में, सो बिकॉज ऑफ दोज वाइडर टायर्स, इसको कॉर्नर पे ना आपको कंटिन्यूअसली पुश करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक अदर बाइक्स जहां पे आप मतलब एक बार पुश कर दिया उसके बाद सिर्फ आप लाइन मेंटेन करते हो। यू नीड टू कंटिन्यूअसली पुश इट, यू सी,
आई कैन, इफ आई लेट इट गो वो स्ट्रेट चली जाएगी, and that is because of the flattish profile of the tires. So handling is like pretty good considering the tire size and considering the nature of this motorcycle. तो उसके हिसाब से अच्छी है, but it's not like or let's say it's not even a close competitor to sports bike. और वो होना भी नहीं चाहिए, मैं अभी क्या बातें कर रहा हूँ, बट ठीक है. ओके, सो इसको कॉर्नर्स पे आपको कंटिन्यूसली पुश करना पड़ता है. एंड ऑल्सो आपने देखा होगा इंडिया में रोड्स थोड़ी सी झुकी रहती हैं ताकि पानी रोड से एक तरफ चला जाए. तो जब आप वैसी रोड्स पे भी चलाते हो ना, तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे भगती है लेफ्ट की तरफ, बिकॉज टायर्स का रोड से उतना अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं बनता है, तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे होती है. सो वहां पे भी आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा बाइक को. अब क्या बात की जाए, सब चीज़ों के बारे में तो बात कर ली है. लाइक दिस इज अ प्रिटी अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस. ये सब बाइक्स ना, लाइक इफ यू आर इन योर 25s 30s, आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, यू कैन अफोर्ड दिस मोटरसाइकिल, तो आप इसको जरूर लीजिए. एंड ऑन वीकेंड्स यू विल हैव सो मच फन विद दिस मोटरसाइकिल. जस्ट अ शॉर्ट स्पिन, आपको बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4-5 किलोमीटर भी चला लोगे ना, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. नाउ अगेन लेट्स गिव इट सम थ्रॉटल. यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, बट इट्स काइंड ऑफ स्मॉल. Whenever you ride this motorcycle hard, there's a constant hustle. Hustle in the sense you need to keep it at line. पूरे टाइम ताकत लगा के यहाँ वहाँ करना पड़ता है. That is totally amazing. मतलब बहुत कम बाइक्स मेरे को स्केयर करती है, डराती है अंदर से. ये वो बाइक है, because it never goes the way you want it. ये अपने तरीके से चलती है जैसे इसको चलना है. So ये वो वाली बाइक है. Also talking about engine heat, तो ये बहुत ज़्यादा हीट करता है. आई विल नेवर रिकमेंड दिस बाइक फॉर सिटीज़. जब आप ऐसे आराम से चलते हो ना, तो भी थोड़ी थोड़ी हीट फील होती है, बट व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट. लगभग 1800 सीसी का इंजन है ये, आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. बाकी इसका हॉर्न एकदम स्कूटी स्टाइल है ना. अगेन लेट्स गिव इट सम थ्रॉटल. ऑल्सो वाइल लीनिंग दिस मोटरसाइकिल, आप इसको बहुत ज़्यादा लीन नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसके फुट पैक्स बहुत जल्दी ग्राउंड को टच कर देते हैं. सो लाइक दिस बाइक इज फॉर स्ट्रेट रोड्स. कॉर्नर्स के लिए उतना है भी नहीं, बट द थिंग इज कॉर्नर्स पे भी थोड़ा बहुत मज़ा आता है. इट्स सो डिफिकल्ट टू टर्न दिस मोटरसाइकिल, बट दैट इज ऑल्सो एक्सपीरियंस. वन मोर थिंग, मैं आपको एक बात बता दूं, दिस थिंग इज एन आई कैंडी, आई कैचर. जहां भी लेके निकल जाओ, हर कोई मुड़ के देखता है. लाइक इवन इफ द पर्सन इज नॉट अ बाइक एंथुसियास्ट, उसको बाइक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो भी मुड़ के देखता है. दैट इज हाउ आई कैंडी, आई कैचिंग दिस मोटरसाइकिल इज. So yeah, this was today's video guys. I hope you all liked the Fat Boy and also the news that Harley is coming back in India. वो एक बहुत अच्छी खबर है. I'm really happy about that. So yeah, thanks for watching guys. Hope you all like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about this beast. I know you are very happy. See you on next video. Bye.